All right, students, a very warm welcome for this particular session. I'm just checking whether we guys are set for the day. It's going to be a good long session, so please make sure that you listen to this very carefully and make notes. Do not worry, the PDF of this particular session, the entire PDF will be available after the session in the description box. You guys can go and check that out. So do not worry too much about it, right? So good evening, everyone. So just a shout out to everyone, please jaldi se join kar lo because this is going to be really superly productive for all of you. ठीक है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ साउंड. Yes, we guys are good to go. All right, let's without wasting any further time, completely clear, loud, audible. Hello students, a very warm welcome for this particular session, and this particular session, as you can see, is on JEE Mains 2021 most detailed analysis. Watch it to crack it if you want to be really among the top scorers at JEE 2022. A lot of students will be joining us from 2021 as well to know that what has happened in JEE 2021 so that they can understand the whole scenario. Plus, it is more important for JEE 2022 candidates to understand that how they have to prepare better and what should be the target. Now, okay, let me quickly go into the mode. The first thing that we have to understand that if we compare from 2020 and 2021 statistics, number of candidates appeared this year were a bit low. पिछले साल total register कितने लोगों ने करा था? 11,74,000, and this year only 10,48,000 registered. Whereas people who appeared for the exam were 10,23,000 last year, and this year it was only 9,39,000. That is why you will see a drop in the cutoff also. Cutoff कम गई है, पर कितना कम जाने की expectation नहीं थी. 1% कम होने की उम्मीद थी, पर वो 2% कम हो गई. That's the thing. All right, not a very big stata, but yes, you should know that the people who take the write the eventual test were a bit low. टोटल शिफ्ट की अगर हम बात करें कितने लोगों ने अपीयर करा, जो एनटीए के हिसाब से डेटा है, यूनिक कैंडिडेट्स जो थे, तो 6 लाख फेब में बैठे थे, 5.5 मार्च में बैठे थे, जुलाई में 5.6 और अगस्त में सरप्राइजिंगली देयर वर अ वेरी फ्यू कैंडिडेट्स, 4.8 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड, जबकि रजिस्ट्रेशन 7.3 सबसे ज्यादा हुई थी आपके इस पर्टिकुलर सेशन के लिए. दो ये वाला डेटा अभी एनटीए ने रिलीज नहीं करा है, सो वी विल चेंज इफ देयर इज पर्टिकुलर चेंज. दिस इज समथिंग फ्रॉम सोर्स कॉल्ड एएनआई दैट वी गाइस हैव पुट अप. चलिए आइए नेक्स्ट है स्टूडेंट स्कोरिंग 100 परसेंटाइल. सो लास्ट ईयर how many students secured 100 percentile? There were 24 students who secured 100 percentile. This year it almost like shot up to 44 candidates got 100 percentile at JEE 2021. Now number of percentiles per shift भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. अगस्त, जुलाई, मार्च, फेब इन पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव में 100 परसेंटाइल्स कहां बने? 11 बने अगस्त के अंदर, जुलाई के अंदर 17. हाईएस्ट परसेंटाइल नंबर ऑफ परसेंटाइलर्स वर इन द अगस्त सेशन, द थर्ड अटेम्प्ट, वेयर वी अंडरस्टैंड दैट a lot of people were prepared much better. So that is where 17 people got 100 percentile in July, मार्च में 13th, फेब में 6. इंटरेस्टिंग स्टैट विल अगेन शो यू हियर दैट उनमें से ये जो जितने भी 100 परसेंटाइलर्स थे उसमें से AIR 1 होल्डर्स कितने थे रेस्पेक्टिव शिफ्ट्स में से. So 2 of the 100 percentilers of the February shift got 100% rank 1. मार्च में से 3 AIR rank 1 मिली. You know that 18 got rank 1 out of those 44. So out of this 18, this is 11 again in July. You will be surprised to know there were 3 such students who got 100 percentile in 2 sessions. Yes, 3 people got 100 percentile in 2 sessions. And August में सिर्फ there were only 2 people who got AIR 1 of this 11 100 percentilers, right? That is what is the stats about how the percentile and the rank has behaved. We'll get into depth of rank versus percentile now. So rank versus percentile, which a lot of people have to set your tone.
कि मेरा अगले साल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, that is something which we will understand in depth. So this is the complete stat if you will see here, right? So we start from 99 पे almost 10,200 रैंक बनी और 89.5 पे you got 91,772 रैंक. That was the final rank that we guys have got, right? So अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारा ग्राफ है. आइए इस ग्राफ को मैं सिंप्लीफाई करता हूं विद सम स्टैटिस्टिकल डेटा. सो हम लोगों ने क्या करा, 99.5 पे हमारे पास, and thanks to all of the students who gave us this data and made this all possible. So this is something which is completely for you guys, because of you only. So 99.5053 पे 5412, 99.499 पे 5430. These were the ranks which were given, right? हमने हर boundary point के लिए 95.5. So we have taken two datas so that you guys are confident that this is almost a secure data. I am damn sure आप सब जिनसे भी पूछेंगे it will be almost like 99.9% correct. We do expect that 10 ऊपर नीचे हो सकता है, but also understand that एक ही स्कोर पे परसेंटाइल पे there could be different ranks also depending on कि आपके मैथ्स में कितने थे, फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, उसके हिसाब से भी. बट दिस इज एक्चुअली द एग्जैक्ट डेटा प्रेजेंटेशन. ठीक है, एंड डू नॉट वरी, वी अंडरस्टैंड दैट a lot of people are targeting here 99 and above, and there are also candidates who are targeting 99.9 and above. उसकी भी रैंकिंग के बारे में बात करते हैं. सो 99 पे यू गॉट ऑलमोस्ट लाइक 10,100 और 200 समथिंग रैंक, राइट? नाउ लेट्स गो अ स्टेप फर्दर. अब अगली बार की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द स्टैट व्हिच शोज यू रैंक फॉर 99 and above. So 99.1, 99.2, 99.3, this. Do not worry, we'll talk about the scores also. स्कोर पे भी बात करेंगे, भी हम सिर्फ रैंक वर्सेस परसेंटाइल, एंड देन वील टॉक अबाउट परसेंटाइल वर्सेस स्कोर. ठीक है, तो आपका 10,200 था ऑलमोस्ट 99 पे, 99.1 इज 9250, 99.2 पे आपकी 8250 आएगी. सो getting into 99 percentile club means that you are in the top 10,000 bracket, right? That means you can say that you are almost secure in terms of getting a good NIT, but not a very good branch. Plus, you are a good contender for JEE Advanced. That is, as a teacher, I can tell you. So that is what the data points we guys have again collected. 99.2 पे 82, 99.7 पे 3400 के आसपास रह गई, और 99.9 जबकि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है सुनने में से 99.9. Yes, it is very good, but it's still 1230 rank was there at 99.9. हम लोगों ने फिर से यहाँ पर statistical data दिया है. So give me a shout out in the comment box, people who want to target 99.9. 99 भी नहीं. How many of you want 99.9? Hit that like button to tell me that you want that 99.9. 99.9, right? All right. आ जाते हैं 99.9 से भी ऊपर. हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी 99.9 से भी ऊपर थी, और उन लोगों ने हमें अपना डेटा दिया, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. सो अगर आप नोटिस करो, वी वेंट अ स्टेप फर्दर. आ जाओ, 99.99 के ऊपर भी गानी होती है भाई, वहां गाली खड़ी नहीं हो जाती है. तो हम लोगों ने यहां पर भी डेटा निकाला. 99.91, 99.93, 99.933, 94, 96, 99, 994. सो इफ यू नोटिस, हम लोगों ने बात करी थी 99.9 पे कहीं 1200 बन रही थी. अगर 99.915 दिस. So if you want to get into the top 500 bracket, so you need to get 99.96, 99.994 पे 107 रैंक बनेगी. So people who are going to target 99.9, now you know what rank you are actually going to target with the help of this. So मुझे आपके चैट बॉक्स में चाहिए, मुझे लाइक्स में चाहिए, that how many of you think you will be targeting 99.9? Let's hit it, pump it, energy. कमेंट में मुझे लिख के बताएं जो बच्चे बाद में देखेंगे. Alright, so this was about what we guys just discussed was percentile and rank. Now we'll move to difficulty, and then we will move to score versus percentile also, and we'll talk about August as well, right? So difficulty comparison की अगर हम बात करें, so we have got two stats for you. We are going to compare JEE Mains 2021 with respect to JEE Mains 2020. So yellow is 2021, blue is 2020. Easy, moderate, tough. So if you notice, easy इस बार ज्यादा था कंपैरेटिवली पेपर, moderate 49% था, दोनों में ही 49, और tough इनफैक्ट कम हो गया.
Sir, it's a strange thing. People were complaining that the paper was difficult, but the paper was not actually difficult. Overall, अगर आप बात करते हो 2020 और 2021, not much of a change. It was almost very similar. Both the exams were very similar. Not much of a change. In fact, it was much more on an easier side. I'll talk about it in depth. So coming about, अगर हम बात करते हैं सिर्फ फिजिक्स की सब्जेक्ट की, जल्दी बात करते हैं, देखो ठीक है. सो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में क्या हुआ, इजी था 24% ऑन ईजियर साइड, मॉडरेट कम हो गया और थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ गया फिजिक्स में. Whereas if we talk about chemistry in fact difficulty बहुत गिर गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा है, 10% डिफिकल्टी इजी बढ़ गया, मॉडरेट अभी भी 48% वही था, और मैथ एक लौता ऐसा सब्जेक्ट था जहां पर डिफिकल्टी बढ़ी थी. एंड दैट इज व्हाट 2022 guys can also expect, that the difficulty of the math will be good. We have seen a lot of pattern change happening at math में 26.5% paper was on the tougher side as compared to 20% which used to be happening earlier. Again, 50% was moderate, 23 last year also was the सेम लेवल. तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें फिजिक्स और केमिस्ट्री बोल सकते हैं, केमिस्ट्री काफी आसान लेवल पे थी, फिजिक्स ऑलमोस्ट सेम लेवल या थोड़ा सा नीचे, और मैथ्स थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुई. तो ओवरऑल बैलेंस आउट हो जाता है इन सब चीजों की वजह से. परसेंटेज ऑफ डिफिकल्टी पर सेशन, तो इजी, मॉडरेट और टफ, फेब, मार्च, जुलाई, अगस्त. सो लेट्स से अ लॉट ऑफ पीपल विल बी आस्किंग, सर इस बार का 2022 का पेपर कब होगा? वी गाइस हैव नो आइडिया. सो वी गाइस आर एक्सपेक्टिंग यार दो शिफ्ट होंगे तो आप मान के चलिए फेब मिड में, और एक वही चीज वापस से आपका अप्रैल मिड में हो जाएगी. 4 अगर हुए तो वही ऑर्डर फॉलो होगा, जनवरी, फेब्रुवरी, then you will have your April and then your May. This should be the order, but I think NTA this time around will stick back to the 2 session fundamental. That is something which I expect, and I might be completely wrong. So अगर हम multiple sessions की across की बात करते हैं, if you notice easy का अगस्त में बैरोमीटर गिर गया था. So this is February, this is March, July, अगस्त. अगर आप नोटिस करें सिर्फ अगस्त में इजी का लेवल गिरा क्योंकि उसमें मॉडरेट का लेवल बढ़ गया. बट इफ यू नोटिस टफ का लेवल almost was same in all these sessions, right? So a lot of people do not understand, जिनको डर लगता है, वो घबराते हैं, सर आगे चल के पेपर टफ हो जाता है. दिस इज अ प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू दैट पेपर टफ नहीं होता है, प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है. स्टूडेंट्स प्रिपेयर आर मच मोर बेटर प्रिपेयर्ड, because of which the cutoff goes high. I'll talk about the cutoff, wait for some time. So this is the tough. Easy was drastically reduced in August, because of which the moderate went up. But overall, again, it's the same stuff. Now, talking about difficulty per session of physics. Physics में अगर आप देखोगे pillars जो हैं, easy हमने यहाँ पर करा ग्रीन से go ahead, मॉडरेट को हमने मीडियम लेवल को येलो कर दिया, और रेड जोन को हमने टफ से जोन डिक्लेयर कर दिया. सो 17 ऑलमोस्ट फिजिक्स ऑलमोस्ट हर सेशन में बराबर का सा आया था, बहुत ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं रहा. 50% ऑलमोस्ट वाज दी मीडियम. अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, केमिस्ट्री अगेन अगस्त में ही बस था कि 14% डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज 10% से नीचे ही पेपर रहा difficulty के point of view से. It was more of moderate and easier side. So that is why it became scoring opportunity there. And you will find that a lot of questions came from inorganic, especially S block hydrogen, which obviously makes the paper easier. ठीक है. और जो क्यों केमिस्ट्री में आगे चल के हम बात करेंगे, केमिस्ट्री में आसान क्यों हुआ काम, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे. आउट ऑफ द लास्ट 10 you have to select only 5. तो वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा शिफ्ट कर दी गई. इन द फर्स्ट 20 क्वेश्चन मोर एम्फोसिस वाज गिवन ऑन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ व्हिच इट बिकेम इवन मोर इजियर, बिकॉज यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ ऊपर गया. मैथ की बात कर लेते हैं. मैथ में अगर आप देखोगे मॉडरेट के बार्स अलग ही चल रहे हैं. अगस्त में 57% ऑफ द मैथ क्वेश्चंस वर ऑफ द मॉडरेट और मीडियम लेवल, एंड डिफिकल्टी एक मैथ एक लॉस ऐसा है जहां पर 20% पेपर टफ रेंज में फॉल कर रहा है, और मार्च वाज अनएक्सपेक्टेडली 31% पेपर बिकेम टफ. बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो पेपर डिफिकल्टी की वजह से स्कोर के ऊपर कोई काम नहीं हुआ. आओ अब देखते हैं कैसे इनका इंपैक्ट कट ऑफ पे होता है, वो समझते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर enjoying what we guys are showing this statistical data. ये काम एनटीए को करना चाहिए था, जो हम कर रहे हैं कि पूरा आपको रिकॉर्ड देना चाहिए. दे हैव
हमसे ऑब्वियस ही बात है, डेटा ज्यादा ही है उनके पास, बट दिस इज समथिंग विच एवरी एग्जामिनेशन बॉडी शुड गिव to the test taker so that they can understand and analyze the test better. So math is something which you can expect 20% paper falls in the tough category, which makes math the most challenging one. आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट रैंक एंड परसेंटाइल, वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफिकल्टी स्टेटस. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. आई कैन सी इन योर कमेंट्स, do keep liking the session. We guys have done a lot of hard work, the team, entire team, me, Kunal sir, there are a lot of people in the team which have worked very very hard for this, right? All right, आइए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं अब. ठीक है, स्कोर पे क्या होगा क्या नहीं होगा. और अगर आप देखोगे हमने 99, 98, 97, 96 सबके लिए एक बनाया है, एवरेज परसेंटाइल का भी चार्ट बनाया है. फेब अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट, जुलाई अटेम्प्ट, अगस्त अटेम्प्ट. फेब अटेम्प्ट है दी लोएस्ट कट ऑफ ओवरऑल. एवरेज कट ऑफ जो थी फेब में लोएस्ट गई थी. हाईएस्ट कट ऑफ वाज इन दी जुलाई, नॉट इवन इन अगस्त. हाईएस्ट वाज इन जुलाई अटेम्प्ट, बिकॉज मार्च और जुलाई के बीच में गैप मिला, यहां पर गैप नहीं मिला, जिसकी वजह से वी ऑलवेज सी दैट परफॉर्मेंस ड्रॉप करती है. सो 99 परसेंटाइल एट February attempt was at 200. Again this is average because Feb has 6 different sessions. I will give you the data for that also. इसमें मैं डेप्थ में नहीं घुसूंगा, but this will be available in the PDF which you can see for yourself. March में it went to 205 despite the math was at 31% difficulty overall. July it went to 208 and then on August it again came back to 203. So if we average this out, so if you have to set a target for 99 percentile from now onwards, that has to be 204. And I'll talk about 99 point above also level. Do not worry. We will talk about what has to be done for 99 percentile and above, right? So this is something which you have to understand. अगर आप अपनी प्रिपरेशन का अभी कुछ कर रहे हैं, so you should stick somewhere around 95. आपका 95 देखें तो 139 marks. So that means if you are giving a paper of 300 marks, you should be getting something around 125 to 150, which will be considered good score at this point in time. That means you are working good. थोड़ा सा अगर आप ढंग से स्मार्ट वर्क करेंगे तो your chances of getting up are there. But if you notice, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. हमें लगता था सर बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, नहीं. 200, 205, 208, 205. But good point is 98 और 99 में you will see that there were 24 marks का average difference था, which is a quite a steep jump. 24 नंबर का मतलब होता है 6 क्वेश्चन सही करना, जो आसान काम नहीं होता है. तो if you are wanting to get from 98 to 99, you will have to see a jump of 24 marks on an average, 24, 25 marks on an average, right? जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना ज्यादा एक एक नंबर पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा आपका रैंक पीछे हो जाएगा एक एक नंबर की वजह से, which is very obvious. I hope you guys understand that. Okay, for August session, we guys, since a lot of people are looking for August की sir detailed analysis, so August में अगर आप देखेंगे 99 percentile, 26th morning, 26th evening, 27th morning, 27th evening, 31st evening, 1st September evening. The stat is with you. The PDF will be available after the session is over. Do not worry, you can delve deeper into it. We guys have shown for everything. जुलाई सेशन के लिए दिखाया है हमने, मार्च सेशन के लिए दिखाया है हमने, फेब सेशन के लिए दिखाया है. एंड दिस इज द बेसिस ऑफ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द एंटायर स्टफ. जिस तरीके से हमने ये सारा कुछ बनाया है आप लोगों के लिए. अब बात करते हैं मोस्ट डिफिकल्ट सेशंस की. अगर हम कंपैरिजन करें, राइट, सो इफ वी हैव टू कंपेयर मोस्ट डिफिकल्ट सेशंस, तो हम लोगों ने क्या करा, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त के जो मोस्ट डिफिकल्ट सेशंस थे जिसपे बहुत स्कोरिंग कम गई थी, ठीक है, वो सेशन उठाए. तो फेब में 26 फेब इवनिंग, 16 मार्च इवनिंग, 20 जुलाई मॉर्निंग एंड 26 अगस्त मॉर्निंग. कई लोगों को लगेगा सर आपने जो ये डेट्स बताई हैं दे आर नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे. वी गाइस आर सेइंग दे आर मोस्ट डिफिकल्ट अगेन बाय दिस स्टैटिस्टिकल डेटा. आई जस्ट टेक एन एग्जांपल. जैसे 26 फेब इवनिंग, 26 फेब इवनिंग पे अगर आप आओगे तो ये देखो 216 हाईएस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी जिसमें पेपर का लेवल बहुत हाई गया था. सो देवर क्या हुआ, हम 99 की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर 174 पे ही बन गया. बट अगर आप देखोगे ये कौन सा था, आ जाओ, सॉरी 26 इवनिंग एरा बच्चों, 175. सो 175 मतलब मोस्ट डिफिकल्ट वाज अकॉर्डिंग टू द डेटा अगेन 175. सो इफ द पेपर वाज मोस्ट चैलेंजिंग, 175 पे फरवरी में 99 बनी,
आप नोटिस करो उसके बाद ये ट्रेंड बढ़ता ही गया। दैट इज द प्रॉब्लम फॉर सक्सेसिव अटेम्प्ट्स। पेपर चाहे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो, आसान हो, कट ऑफ ऊपर ही जाती रहेगी। दैट इज व्हाट वी गेट आर शोइंग विद दिस एरो, दैट द ट्रेंड वाज द कट ऑफ फॉर 99, फॉर 98, 97, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी वो। ठीक है, जुलाई में पेपर क्योंकि काफी अजीब सा लगा, एकदम से सेटबैक लगा कि पेपर अच्छा हो गया था, तो एक बार यहां से यहां में ड्रॉप आया, उसके बाद फिर से बढ़ गया। सो मोस्ट डिफिकल्ट सेशंस में भी यू विल फाइंड इट चैलेंजिंग टू स्कोर 99। 175 था, इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि भैया पहला अटेम्प्ट ढंग से कर लो। 170, ये 10 मार्क्स का डिफरेंस नहीं है। अंडरस्टैंड, दिस इज 10 मार्क्स व्हेन द सेशन इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो वो 10 नंबर बनाना मतलब आपको 20 या 25 नंबर बनाने पड़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोस्ट स्कोरिंग की, जहां पर बहुत आसान पेपर आया, आसान नहीं तो बहुत ज्यादा स्कोर हाई गया उस पर्टिकुलर सेशन का। सो 99 हाईएस्ट गया था 220 मार्क्स। ठीक है, दैट मींस वेरी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। जरा मार्च का देखना, 18 मार्च मॉर्निंग में 99 परसेंटाइल वेंट टू 245। इतना ज्यादा रैंडम है। देखो, लोएस्ट गया था 185 मार्च में, हाईएस्ट कितना गया 245। ओ माय गॉड, you can see a difference of 60 marks for the same percentile. That is why every teacher is behind you. भैया ढंग से पढ़ लो, चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस के ऊपर मत जाओ, जो अभी मैं बात करके वो भी दिखाऊंगा आपको, बट यू हैव टू स्टिक योरसेल्फ कि मेरे को सारा सिलेबस खत्म करना है। यू नेवर नो आपका कौन सा सेशन आ जाए जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ जाएगा। सो 99 हाईएस्ट देख रहे हो, मोस्ट स्कोरिंग पे 220, 245, 241, 239, तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये ऑलमोस्ट 20 नंबर का चेंज आ गया, ऑलमोस्ट 20 नंबर का। दैट इज व्हाई अगेन एवरीबडी विल टेल यू गिव बेस्ट शॉट टू द फर्स्ट, बट it does not mean that you cannot do it here. You just have to be ready that I will be improving myself by 20 marks in the successive sessions. ठीक है, क्लियर हुई बात सबको? ठीक है, चलिए, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे को और क्या है, हमें आ जाते हैं अब इंपॉर्टेंट। I want, how many of you guys feel that they want 99.9? Show that love with the, you can put it in the chat and you can hit the like button to tell us that hard work करा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। Alright, so if we talk about 99.9, फरवरी अटेम्प्ट में 258 पे बना, मार्च में भी 258 पे बना, जुलाई में 264, 258। सो गुड पॉइंट इज, जब आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 99 पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है ना। एवरेज स्कोर की बात करता हूं तो 200 एवरेज के स्कोर पे। अगेन गाइस कंसिडर, फेब है 6 पेपर्स, मार्च है 6 पेपर्स, जुलाई 7, अगस्त 7। अगेन वी गाइस आर टेकिंग एवरेज परसेंटाइल्स ऑफ ईच। वी हैव गिवन यू द स्कोर कार्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो 99.5, 223, 226, 230, 225, यू कैन इसके हमने एवरेज आउट करके दे दिया। तो इफ यू आर टारगेटिंग 99.98, that means, or 99.7, that means top 3000, top 4000 ranks, your target should be to get 240 plus at JEE Mains. That is something which you should do. समझ में आ रही है बात भाई? अब 99 पे नहीं रुकना है। मैथन को एंथम बना रहा है, let's get 99.9. Why just stick to 99? Let's get 99.9. That should be the target, right? All right. So अगर हम सब्जेक्ट वाइज 99 परसेंटाइल की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज 99 परसेंटाइल के स्कोर पे गया फेब, मार्च, जुलाई, अगस्त। फिजिक्स 74, 78, 80, 80, केमिस्ट्री 65, 74, 75, 72, it then kept on increasing, and then मैथ वाज अ बिट डाइसी। मैथ ही एक लौता सब्जेक्ट था, इफ यू गाइस सी क्लियरली, जहां पर 99 के लिए स्कोर कम हुआ। स्कोर कम क्यों हुआ? क्योंकि पेपर, बिलीव मी गाइस, ये लग रहा होगा आपको ये तो कम हो गया, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा। नो गाइस, हियर देयर वाज अ स्टीप चेंज इन पेपर। फरवरी पेपर वाज इजी, whereas all these 3 papers were really difficult, and I don't think this is enough justification कि जितना पेपर डिफिकल्ट हुआ था उतना ड्रॉप नहीं हुआ। That means students were much better prepared. So that is where you guys have to clear your subject cutoffs also very well. हम लोगों ने एक 95 परसेंटाइल के लिए भी बनाया, 95 परसेंटाइल। We understand everybody स्टार्टिंग में हो सकता है 99 पे ना रहे। फिजिक्स 57, 52, 43. So that is something which we guys have also done for you, ठीक है, जहां हमने एवरेज आउट करा है परसेंटाइल्स फॉर 95. We guys have stick to 95 also.
ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं कि हर बंदा 99 पे पूरा पहुंच जाएगा, हम लोगों ने हर बच्चे के लिए रखा है। तो बट अगर आप अभी भी नोटिस करें 95 परसेंटाइल पे पहुंचने के लिए भी यू विल रिक्वायर above 50% in each subject if subject wise percentile has to be taken into consideration. Math becomes important because math के हिसाब से अगर if you have guys got the same percentile then which one of you will get a better rank will be decided by your mathematics percentile in your successive session. ठीक है, चलिए आइए अब आ जाते हैं क्लास वाइज वेटेज। जब हम करेंगे सारी वो बात जहां चैप्टर की इंपॉर्टेंस, क्वेश्चंस कितने बने, वी विल टॉक अबाउट चैप्टर क्लास वेटेज, यूनिट वेटेज, we'll talk about subject wise, chapter wise weightage, important chapters, difficult chapters. That is something which we will talk about, which a lot of students would be interested to know. So class की weightage की अगर बात करें for physics, 51% was class 12. This is guys class 12, this is 11th, 51 49. Physics always remains 50-50 split. We guys are also showing you data for February, March, August. If you notice, it almost remains same. August में 53% क्लास 12 पे थोड़ा सा शिफ्ट ज्यादा हो गया, बट ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। ठीक है, यू गाइस कैन नाउ अंडरस्टैंड हमने कितना इन डेप्थ एनालिसिस करा है, एंड दैट इज व्हाट गोज behind everything that we do at Math on Go, right? This is something which we do for a long duration at Math on Go. केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री 53% 12th था, 47% 11th था, और द सेम ट्रेंड रिमेन सेम। अगस्त में फिर से एक ड्रॉप आया जहां क्लास 12th की वेटेज 57% हो गई और 11th के क्वेश्चंस कम हुए। सो अगस्त में फिजिक्स में भी चेंज आया और 12th में केमिस्ट्री में भी चेंज आया। Now if you talk about maths, math always remains higher on the class 12th because of the calculus portion there, and plus algebra also being there, which you can see 55% in class 12, 45% 11th. Again 11th अगस्त में धोखा दिया, अगस्त में 51 और 49 इक्वली 50-50 कर दिया, बट ऑलमोस्ट 55-45, and guys no change, this was still the same pattern in 2020 also. आ जाओ यूनिट वाइज वेटेज की बात करें, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है सर, विच यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है? सो एट मैथ ऑन गो वी डिवाइड फिजिक्स इन मैकेनिक्स 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मिसलेनियस, मैकेनिज्म 2, मैकेनिक्स 2, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स। ये जो हमने नीचे लिखा है ये क्या है? परसेंटेज। दिस इज गाइस परसेंटेज, सॉरी दिस इज परसेंटेज, 26%, 22%, 14%। सो ओवरऑल अगर हम देखें, हमने आपको यहां पर फेब, मार्च, जुलाई, अगस्त का भी डेटा दे दिया सारा, और ओवरऑल अगर हम बात करें इस बार मैकेनिक्स 1 वाज द लाइमलाइट इन फिजिक्स। 28% ऑफ द एंटायर फिजिक्स क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स 1 मतलब हम कहां तक लेके जा रहे हैं इसको, आप मान के चलिए कि हम इसको लेके चले गए ऑलमोस्ट फ्लूइड तक। ठीक है, फ्लूइड्स तक। वेव्स और ऑसिलेशंस जो बनती हैं वो जनरली मैकेनिक्स 2 में आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 24% of the paper, and then you can see optics सिर्फ 6% था, वेव ऑप्टिक्स और जो आता है, मॉडर्न फिजिक्स 9%, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये 6% और 9% दोनों मिला के 15% बनता है, बट सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स है, विच इज स्कोरिंग। आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन अ बिट वाइल। केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एज द नेम सजेस्ट सबसे ज्यादा वेटेज आई ऑर्गेनिक की, फिर फिजिकल की और फिर इनऑर्गेनिक की। 37% of the paper was organic, 34 physical, and 29% was inorganic. Similar trend was seen here. मैथ्स की बात करते हैं, मैथ में सबसे ज्यादा कौन था? Algebra is the king. मैथ्स में बच्चों कौन होता है? Algebra is the king. 38%, 38%, and 32% कैलकुलस। अगर आप ये सारा छोड़ भी दो नीचे वाला, अगर आप इस पे कंसंट्रेट करो, बट हैविंग सेड दैट ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री का पता होना चाहिए। तो ये अगर आप दोनों क्लब करते हो, 70% ऑफ द पेपर फॉल इन 2 यूनिट्स, विच इज द प्रॉब्लम विद मैथ्स। और यही अपॉर्चुनिटी भी है, यही प्रॉब्लम भी है। ट्रेंड ऑलमोस्ट रिमेन सेम। इन जुलाई ओनली देयर वाज अ ओकेजन वेयर अलजेब्रा 40% बन गया था, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रिकी बन जाता है क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं चैप्टर वेटेज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 2022। कौन सा चैप्टर करना चाहिए, क्या वेटेज है। वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि कौन सा करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए। वी विल स्टिल टेल यू आपको सारे चैप्टर्स करने चाहिए, बिकॉज देयर इज सो मच वेरिएशन विच हैज हैपेंड इन 26 पेपर्स इन जेईई मेंस 2021। तो अब हम सेफ नहीं हो सकते किसी भी कुछ करने की, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये करके, बट स्टिल जो डेटा था
we guys will just show it to you. So if we start with physics, these top 11 chapters of physics were 50% of the physics. So ये क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों कि कितने कितने क्वेश्चन आए. करंट इलेक्ट्रिसिटी एट 49 क्वेश्चंस. एंड इफ यू नोटिस यार फेब में पूछा ही नहीं गया, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम हर बार एक्सपेक्ट करते हैं भर भर के आएगा. फेब में इट वाज नॉट आस्क्ड एट ऑल. फेब में ओनली 6 क्वेश्चंस. And then suddenly in the August they got 16 questions. So lot of variation there. But it is one of the most. Semiconductors 12, 8, 9, 13 almost same. Alternating current, this is something new which for this year has come up too high. मतलब important होता था पर इतना ऊपर नहीं. इस साल भर भर के आया 12, 10, 11, 7. लास्ट वाले में देखो रहे हो आप. There are always exceptions in this 2021. 12, 10, 11 और एकदम से फिर ड्रॉप हो गया 7. So अगर हम मल्टीपल शिफ्ट्स की भी बात करते हैं, वी कैन नॉट बी रेस्ट एश्योर्ड कि पिछले सेशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो अगले में भी उतना ही होगा. रोटेशन जनरली विच यूज्ड टू बी ऑन द सेकंड नंबर, दिस ईयर वाज ऑन फोर्थ. 39, सिर्फ 5 क्वेश्चन देखो. और कई कई शिफ्ट्स में, आगे की शिफ्ट्स में ऐसा भी हुआ कि एक एक पेपर में 4-4 क्वेश्चन आए रोटेशन से. यहां देख रहे हो 14 क्वेश्चन हो गए रोटेशन के सीधा, और एक ही शिफ्ट में 3 या 4 क्वेश्चन थे रोटेशन के. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट आपको हर चैप्टर करना बहुत जरूरी है. दैट इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू फॉलो. ओके, ठीक है, पढ़ लोगे ये सारा. ठीक है, तो 11 चैप्टर अगर मैं लॉज ऑफ मोशन तक यहां तक करता हूं, सो दिस कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 50% ऑफ दी फिजिक्स. फिजिक्स में कितने आपके क्वेश्चंस बने? 780 से अगर देखें तो 390 क्वेश्चंस आपके इन 11 चैप्टर्स से बने. दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन सी. वी हैव गिवन यू द स्टैट्स फॉर अदर फिजिक्स चैप्टर्स आल्सो व्हिच यू गाइस कैन सी. टोटल आपको अगर टोटल से आइडिया लेना हो, टोटल का आइडिया कैसे लोगे? देयर वर 26 पेपर्स. तो आप अगर 49 डिवाइडेड बाय 26 करोगे, दैट मींस कितनी फ्रीक्वेंसी आई. दैट मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी हर, अगर पेपर की बात करूं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन से. नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट. केमिस्ट्री में टॉप 11 चैप्टर्स अगेन कंप्राइज्ड ऑफ 50%. टॉप बीइंग GOC this year, which was not the case in 2020. Now GOC 54 questions, almost क्या, more than 2 questions. 26 पेपर थे आपके. Again see the anomaly, only 7 and then suddenly 19, 15 questions in this. So that is where again you have to understand, you have to do everything. That is where the paper is going toward. But obviously बात है GOC आता होगा तभी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, उसके बिना नहीं होगी, which is good. अगर GOC अच्छा है तो स्कोरिंग हो जाएगी आपकी. ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है. इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली फर्स्ट नंबर पे होता था, इस बार सेकंड नंबर पे विद अ वेरी गुड डिफरेंस. इफ यू नोटिस 54 और यहाँ पर 43. अमीन्स आता था, थर्ड नंबर पे नहीं आता था पर आता था. कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है अमीन्स. हाइड्रोकार्बन, chemical bonding, biomolecules, solutions, DNF, structure of atom, metallurgy, thermodynamics. So again, this comprises 50% of your chemistry. ठीक है, again we guys are going to give you PDF में मिल जाएगा. ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, PDF में अवेलेबल है. Let's talk about maths. मैथ में और ज्यादा टिल्ट होता है कि सिर्फ टॉप 10 चैप्टर्स, 11वां भी हटा दो, only in top 10 you will get 50% of the math paper, and this always remain on the top. This is always the king. 3-dimensional geometry. In fact, हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है that is basically according to the NCERT standard. So we guys have splitted matrices and determinants. If you will club these two topics, 33 and you have 29 here, 62, it will become the most important topic which you should definitely eye this year. मैथ में पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे, डिस्पाइट बीइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन ये थोड़ा सा ऑड मैन आउट था. इतने क्वेश्चंस नहीं बनते जितने इस साल डेफिनेट से बने, जिसकी वजह से पेपर का डिफिकल्टी लेवल यू कैन से हैज आल्सो इंप्रूव्ड ऑन मैथ्स. ठीक है, जनरली ये ऑर्डर रहता था, सीक्वेंस सीरीज आता था, बाइनोमियल भी आता ही था, तो ये जो है अनोमली थी डेफिनेट वाली. बट इफ यू नोटिस मैथ में 3-dimensional ज्योमेट्री परमानेंट 13, 15, 12, 16 जम के आ रहा है. बाइनोमियल आता था, रैंडमनेस बहुत ज्यादा थी बाइनोमियल में. देखो 7 and then 15 and then again 6, रैंडमनेस वाज हाई. बट ओवरऑल अभी भी क्या रहा, टॉप 5 में, टॉप 5 में अभी भी है बाइनोमियल.
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले अटेम्प्ट में भर भर के आया फरवरी में, नोटिस करो, उसके बाद सीधा टैंक डाउन हो गया, सिर्फ 6। सो दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग मोर अनप्रेडिक्टेबल, विच आई वुड से इज गुड। बुरी बात नहीं होती है ये, इससे क्या होता है, जो अच्छा बच्चा होता है वही निकल के आता है बाहर कंपटीशन में। दैट इज व्हाई यू हैव टू बीट द कंपटीशन बाय प्रिपेयरिंग वेरी वेरी थॉरोली, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे ये सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आए, दैट मींस 26 पेपर है, दैट मींस 1 क्वेश्चन पर पेपर, 1 क्वेश्चन पर पेपर, यू गाइस कैन से, यू कैन सी ऑल ऑफ देम। देयर वर सम ब्लूपर्स इन मैथ्स, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन बना है, एक ही बना, इंडक्शन से भी मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया। ये छोटे छोटे ब्लूपर्स आए थे मैथ्स के अंदर, क्लियर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट स्टैट है तुम लोगों के लिए, भर दिया हमने, देख रहे हो स्टैट। अब ये समझ लो कि ये इतना डेप्थ में अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो कितना डेप्थ इसकी प्रिपरेशन करते हैं पहले हम आप लोगों के लिए। सो न्यूमेरिकल की अगर बात करें, हम लोगों ने टॉप 10 चैप्टर्स निकाले, क्यों न्यूमेरिकल में क्या था, 30 क्वेश्चंस थे, सॉरी 30 कह रहा हूं, 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, ठीक है, और आपके 26 पेपर्स हुए। सो दैट मींस देयर वर 260 क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल टाइप। देन वी एनालाइज्ड कि यार उसमें भी किसी की प्रेफरेंस ज्यादा थी क्या, यस, एंड वी फिगर्ड आउट दैट दीज आर द 10 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स जहां पर ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा % पेपर न्यूमेरिकल का कवर ही हो गया, ठीक है। सो अगर आप बात करते हो 260 फिजिक्स में थे, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप नोटिस करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाज द किंग, रोटेशनल मोशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, ये तो आप इस तरीके से भी आगे से प्लान कर सकते हैं। ये काफी प्रिडिक्टेबल पैटर्न था, आप नोटिस करोगे तो काफी कुछ सेम रहा, ब्लंडर्स जगह जगह हैं, सिर्फ एक और फिर यहाँ 6 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद 7 फिर 2, बट दिस वाज द ट्रेंड फॉर न्यूमेरिकल चॉइस क्वेश्चंस आल्सो। न्यूमेरिकल में भी था पैटर्न। तो आप समझो हम ये क्यों कर पा रहे हैं ये सारी चीज, क्योंकि जब हमने टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो हम लोग यार ये सब एलिमेंट्स नोटिस करते हैं कि यार कौन सा चैप्टर को कहां कहां डालना चाहिए, पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डू ऑल दिस, ठीक है। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, केमिस्ट्री में ऑब्वियस ही बात थी, एक पॉइंट में यहां लिख देता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री वाज द लाइमलाइट। फिजिकल केमिस्ट्री भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए, सॉल्यूशंस, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो 5 चैप्टर थे टॉप के, देख रहे हो, वो सारे के सारे क्या हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो, वी कॉल इट इनऑर्गेनिक, बट हाँ कैलकुलेटिव है अभी भी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन। सो इफ यू नोटिस, आउट ऑफ द 10 चैप्टर्स ऑफ numerical based, 8 are physical chemistry, and that is where the entire physical chemistry was being shifted, which made, सुनना ढंग से, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई हो गई केमिस्ट्री की। जो इनको आता था वो फोड़ फाड़ के चले, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ढंग से पढ़ के गए, जो टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज में आए, एंड दिस सेव्ड देयर टाइम, बिकॉज आपको 10 के 10 क्वेश्चन नहीं करने थे, आपको 5 आउट ऑफ 10 करने थे। दैट इज वेयर यू सेव्ड टाइम, ठीक है। आइए मैथ्स में अगर बात करते हैं, मैथ्स में अगेन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न था जो एमसीक्यूज में था। बायनोमियल सबसे ज्यादा पूछा गया, विच वी गाइस एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था, मैं लिख देता हूं, ये एक्सपेक्टेड था, ये भी एक्सपेक्टेड है। मैथ्स में बहुत एक्सपेक्टेड पैटर्न थे, ये भी एक्सपेक्टेड था कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पूछा जाएगा, ये भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जनरली आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज एक्सपेक्टेड, काफी कुछ था, बायनोमियल, 3D, मैट्रिसेस, परम्यूटेशन, सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट यहां पर भी पूछा गया एक क्वेश्चन। सो वी गाइस एक्सपेक्टेड कि होने वाला है। आ जाते हैं जो आप बात सुनना चाहते हैं, धीरे धीरे एंड की तरफ आ रहे हैं। आई होप यू गाइस हैव लव्ड द वे वी गाइस हैव एनालाइज्ड एंटायर जेईई 2021। हाई आउटपुट जो पूछे गए, हाई आउटपुट की मैं डेफिनेशन दे देता हूं। 26 पेपर्स वर देयर, तो वी गाइस आर कैटेगराइजिंग दोस चैप्टर्स जो एटलीस्ट 23 क्वेश्चंस या 22 क्वेश्चंस तो बने, दैट मींस ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन पर पेपर, एंड दे वर इजी। इजी का मतलब ये नहीं कि आपके हिसाब से इजी, नो, पेपर में क्वेश्चन आसान आया या टफ आया, हम उसके हिसाब से बात करेंगे, राइट। वी गाइस आर टॉकिंग अबाउट दैट। So if you see percentage of questions falling under easy, moderate and tough, top chapters in chemistry, sorry physics होगा बच्चों ये, chemistry नहीं, communication system वो 67% क्वेश्चन जो है वो easy थे, kinetic theory of gases easy,
सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स कमाल की बात, 42% of the question paper was questions that came from ray optics were easy, hardly 19% was tough. So that is something which you can try and decide, high output but still the questions came easy. जबकि ray optics पढ़ने में टाइम लगता है पर questions क्या है, 42% of the questions came easy. केमिस्ट्री की बात करें, ये आपको देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, सारा का सारा, हर ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें 22 या 23 से ज्यादा क्वेश्चंस आए. दैट मींस पर शिफ्ट एक क्वेश्चन. मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल, बायोमोलिक्यूल, सरफेस, हाइड्रोजन, 5 दिन में 5 चैप्टर्स खत्म. ये वो वाले चैप्टर्स हैं. इजी देखो, 89, 80, 79, 61, 58. ये तो बेचारे हम इनको टफ डाल ही नहीं सकते, टफ क्या डालेंगे इसमें, राइट? क्लियर? ओके, आ जाओ. मैथ की बात करें, मैथ में टॉप चैप्टर्स इन मैथ्स कौन से थे? मैथमेटिकल रीजनिंग, वेक्टर 3D, कमाल की बात आया भर भर के, बट अच्छी बात आसान 41% था, मॉडरेट 45, टफ 14. अब ये लगेगा सर ये तो पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है. दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर, दैट समबडी विल फाइंड समथिंग इजी एंड समबडी विल फाइंड दिस, बट अगर हम एक एवरेज कैंडिडेट की तरीके से बात करें, दीज आर दी इजी. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सर क्या बात कर रहे हो? हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ते हैं तो हम बहुत डिफिकल्ट पढ़ते हैं, बट यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन जो आए वो आसान थे. दैट इज व्हाई वी गाइस हैव पिक्ड इट अप. अब वो चैप्टर्स जिनकी आउटपुट तो हाई थी, मतलब 26 पेपर्स में मोर देन 22 23 क्वेश्चंस केम, बट दे वर टू टफ. वो टफ ज्यादा थे. तो अगर फिजिक्स में बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन 1D, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स में आसान भी आया और टफ भी आया. फिजिक्स एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है जहां पर एक ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट भी थ्रो कर सकता है और एक ही सब्जेक्ट बहुत आसान भी थ्रो कर सकता है. मतलब ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो टफ के हिसाब से अगर हम देखेंगे और चैप्टर्स में जो टफनेस थी वो 19% से कम थी. ठीक है, अगर ज्यादा थी तो यार क्वेश्चंस नहीं आए होंगे 20 से ज्यादा. ठीक है, दैट इज व्हाट वी गाइस हैव डन. केमिस्ट्री में टफ कुछ ज्यादा था ही नहीं यार. एल्डिहाइड कीटोन 32, थर्मोडायनेमिक्स 22% पेपर वाज टफ, हाइड्रोकार्बन वाज 21%. बट एट द सेम टाइम वी सी थर्मोडायनेमिक्स आसान भी बहुत आया, 30%. सो ये एक ओवरलैप मिलेगा जहां पर आप देखेंगे कि एक ही चैप्टर दोनों सीरीज में फॉल कर रहा है. मैथ में डेफिनेट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये खैर हमेशा ही रहता है, ये हमेशा रहता है बच्चों, डेफिनेट और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी. मैट्रिसेस वाज आस्क्ड वेरी वेल दिस ईयर. फंक्शंस अच्छा पूछा गया, इतना टफ नहीं पूछा जाता, और कॉम्प्लेक्स तो नाम में ही कॉम्प्लेक्स है. सो मैथ में मच मोर प्रेडिक्टेबिलिटी वाज देयर, वेयर वी नो दैट कौन सा पेपर टफ आने वाला है, कौन सा चैप्टर टफ आने वाला है, वही टफ आया भी. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी तरफ से पूरा मैथ ऑन गो का एनालिसिस. आई होप यू लव्ड द वे वी गाइस हैव एनालाइज्ड. You can let me know in the comment section that how you will now utilize this analysis for your improvement. And I think we guys are able to set up a confidence in you that you guys can come to Math on Go, subscribe Math on Go, right? And you can follow us with some level of trust and loyalty with us. इतनी मेहनत यार बहुत कम लोग करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा सब नहीं करते, बट बहुत कम लोग करते हैं. And we guys are one of those few which are doing that sort of hard work for you, right? So start making use of all this statistical data that we guys have provided to you. It's a very, very important. Smart study is very different from hard work. Smart study में information बहुत चाहिए होती है, statistical information चाहिए होती है, and that is something which we guys have provided you today. So don't miss out on it. There are almost 60 pages of in-depth analysis that we guys have done for you. राइट, एवरीथिंग राइट. आपको जो चाहिए था ना, हम लोगों ने सब दे दिया यार आपको. बहुत सारे लोग इसको पेड करेंगे, बहुत सारे लोग इसको कॉपी करेंगे, बट आवर टारगेट इज ये चीज मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, एंड वी गाइस आर ऑलवेज हियर टू डू इट फर्स्ट, राइट? ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, I love to just end with this one. I want a lot of people to fall in this category. मेरा टारगेट ये है. ठीक है, ऑल राइट. सो सम पीपल आर सेइंग सर जेईई एडवांस में थर्ड अटेम्प्ट दिला दो. यार मेरे बस की नहीं है वो, और आई वुड स्टिल से आप थर्ड जो सेकंड अटेम्प्ट होता है मैं उसके फेवर में नहीं होता हूँ. और मेरे पास किसी भी यूट्यूबर को लाओ, उसको मैं गलत प्रूव कर सकता हूँ इस बात के लिए कि बहुत सारे कोटा के टीचर्स अंधविश्वासियों की तरह आपको बोलेंगे मेडिकल वाले बच्चे भी तो ड्रॉप करते हैं. आप मुझे बताइए कौन सा डॉक्टर बिना डॉक्टर की डिग्री के डॉक्टर की दुकान खोल सकता है?
नहीं खोल सकता ना। बट बीइंग एन इंजीनियर, इफ यू नो लेट्स से कोडिंग आती है आपको, तो आपको कंप्यूटर की डिग्री की जरूरत नहीं है टू बी अ गुड कोडर। आप एक कॉलेज ड्रॉप आउट होके भी वर्ल्ड के बेस्ट कोडर बन सकते हैं, विच इज ट्रू फॉर बिल गेट्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर। बट कैन यू बिकम अ डॉक्टर बाय अ कॉलेज ड्रॉप आउट, बीइंग अ कॉलेज ड्रॉप आउट? दैट इज वेयर जो लोग मेडिकल ड्रॉप करते हैं वो मल्टीपल ईयर्स, 5-5 6-6 साल ड्रॉप करते हैं। वो लॉजिक सही है वहां पर। चेंज हो रहा है अगर जमाना, तो आपको भी चेंज होने की जरूरत है, और हमारे कई टीचर्स को भी चेंज होने की बहुत जरूरत है, ठीक है। देयर इज लॉजिक टू एवरीथिंग। ऑलराइट, मजा आया भाई एनालिसिस देख के, ठीक है, चले। Alright guys, so we'll keep coming up with these kind of sessions. Do let me know in the comment section that what else is required so that we guys can do better at JEE Mains 2022. JEE Mains 2022 मतलब मान के चलो आ गया, 4 या 5 महीने हैं, एग्रीड, बट दैट डज नॉट मीन कि ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। जो बर्बाद कर देगा उसके लिए बहुत कम है, जो ढंग से यूज करेगा उसके लिए सफिशिएंट टाइम है। तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन यू whether the time that you have is sufficient or not. मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं हीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं जीरो से हीरो बन जाऊंगा, ये फिल्मों में डायलॉग हटा दो लाइफ से, ठीक है ना, ये लाइफ से डायलॉग्स हटाओ, तुम समझ रहे होगे, है ना। तो ये होता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी जीरो पे हैं तो ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद हीरो वाला स्कोर ना आए, बट अगर सेकेंड अटेम्प्ट मिलता है तो उसमें बन जाएगा। बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अगस्त एनालिसिस मांग रहे हैं यार, अगस्त की एनालिसिस दे तो दी भाई, दे तो रखी है सारी एनालिसिस, जान लोगे यार हमारी, दे तो दी सारी, सारी एनालिसिस है यार, ढंग से देखो, क्लियर। क्वेश्चन सॉल्विंग ऐप, क्वेश्चन सॉल्विंग है एमएस फराज, इस बच्चे इज ओनली फॉर क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओपन फॉर एवरीवन, इट्स नॉट अ फ्री ऐप। और हम फ्री और पेड को अलग अलग करते हैं, अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर बताऊं कुछ और पीछे मेरी बैकड्रॉप पे क्रैश कोर्स की फोटो चल रही हो, हम ये काम नहीं करते हैं। यहाँ पर नीचे पट्टी में मैं ड्रॉपर की कोई बात कर रहा हूँ, ड्रॉपर का बैग चल रहा हो पीछे, मैं बात कर रहा हूँ पीछे मेरी क्लासरूम की फोटोएं चल रही हूँ। वी गाइस डोंट डू दिस एक्टिविटी, ठीक है। जो हमारा क्लियर है वो बहुत क्लियर है, ठीक है ना, जो क्लियर है वो क्लियर है। पेड है तो पेड है, फ्री है तो फ्री है, कोई शर्म नहीं है, पैसे मांगने में भी शर्म नहीं है, और फ्री में क्वालिटी काम देने में भी शर्म नहीं है। अब लोग बहुत सारे इसको चेपेंगे ना, ये तो तुम्हें भी पता है, समझ गए हो कौन कौन चेपने वाला है इसको। कल ही वीडियोस बननी शुरू हो जाएंगी हमारे डेटा के साथ। तो थोड़ा समझदार बनो यार, मतलब बोलेंगे तभी समझदार बनोगे, तो समझदारी क्या रही। यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। ये तुम्हें पता है कौन डेटा कॉपी करने वाला है, कौन आएगा, कौन हमारी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करके वीडियो डालेगा। कईयों की फौजें चल रही हैं, कईयों की कुछ चल रही हैं, पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। बहुत सारे सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखो आपका समय कहाँ बचता है और आप कहाँ काम कर पाते हो, सिंपल काम है, ठीक है ना। सारे क्रैश कोर्सेज अच्छे होते हैं, सारे कोर्सेज अच्छे होते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, बट जब आप लॉजिकली अपना डिसीजन लेते हैं, वो सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी दी फाइनल कॉल, ठीक है। चलिए, ऑलराइट गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कैसी लगी एनालिसिस, यू गाइस हैव वर्कड रियली रियली हार्ड फॉर इट, बिलीव मी ऑन दिस। गॉड ब्लेस, बाय बाय। और जाने से पहले एक काम तो करना बनता है, मैं चलाऊंगा भी एंथम, ठीक है। और देख स्लाइड ही स्लाइड चले जा रही है यार, स्लाइड नहीं खत्म हो रही, ठीक है। हैशटैग पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस न्यू एंड डू नॉट नो, फोड़ना हम लोगों ने शुरू करा था और लोग हमें ही डुप्लीकेट कहने लग गए। पेपर फोड़ना है, I need that thing in the hashtag, and I'm going to put this anthem right away so that you guys can listen to it, and I'll sign off with that anthem here. Right guys, God bless, bye bye.